taken my, I have switched my week off today because I was having Sundays week off. For this session, I have switched it. But don't take for granted that I'll plan all these sessions on Sunday only. I'll plan these out on only on Saturdays. Okay. Is my screen visible? No, ma'am. Not yet. No, No, ma'am. no, no, no. No, ma'am. Now. Sure. Yes, ma'am. Yes. Visible. Okay. Okay then. Okay. Let me give you the description. ये session salary negotiation है. We will learn about some strategies, some key points, some bullet points, ki how to tackle that, how to counter that offer what the HR is giving us, right? So for that, उसके लिए एक I have made a PPT जिसके जिसके अंदर कुछ बार ग्राफ्स होंगे, कुछ डेटा है. So you will get to know कि हाँ how to tackle as a fresher or as a mid level candidate from the HR, क्योंकि वो आपको बहुत कम से कम लाइक जितना आप जा सकते हो बियॉन्ड बिलो उतना वो आपको कम करेगी, बट आपको वहीं पे काउंटर करना उसके ऑफर्स को विद द रिस्पेक्ट, विद द विद दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, विदाउट गेटिंग रूड और अनप्रोफेशनल. आपको वो डील क्लोज करनी होती है, राइट? सो दिस इज द सैलरी नेगोशिएशन पार्ट जो दोनों साइड से होता है. एचआर भी आपको कन्विंस करेगी, आप भी उसे कन्विंस और मैनिपुलेट करोगे, राइट? ओके. किसी को इस सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट आ रहा है कि इस सेशन मुझे मैम समझ नहीं आ रहा कैसे होने वाला है या फिर कुछ भी ऐसा? मैम स्टार्टिंग का जो थोड़ा वो मिस कर दिए थे वो. नो नथिंग अनुराग, इट्स wasn't that important. ऐसा कुछ Ma'am, है I नहीं. have a doubt. Yes, Ruchita. Ma'am, I am having an experience, but not from this SF. So I would be treated as a fresher for SF. I mean, I would be getting roles as a fresher, or it would be like experience would be counted. Like, see, your past experience, if it's in another domain, I don't think so. The company, if you're, going as a SF consultant, they will treat you as experience because you are not having experience in SF part. You are having experience, but in another domain. Okay. So I don't think so. They will give you that, the last hike on that last CTC. They will give you the salary brackets as per the markets, what the companies or the what market is providing to a fresher in SF. Okay, but yeah, Okay. you can counter that. You can disclose your all your skill sets, your experiences, which is common into SF and your past, in your previous domain. Okay, so that could be counted, and then you can close that deal on a good salary, handsome salary. Okay, but yeah, but obviously not that much which you were, used to get that. Okay. So let's see. Let's have this session. Okay. Which all doubts okay, we will discuss it about ending of the session. Sure, ma'am. Sure. Still the candidates are joining. Okay. Okay. So the topic is salary negotiation strategies for freshers, or I can say some mid-level. Okay, looks good. And how to respond to the HR counter offers. Okay, so first is what we are gonna do in this. Okay, candidates with practical salary negotiation techniques. ये आज का kind of a summary है what we are gonna do. Counter offer dynamics and build confidence in communication with HR. क्योंकि कई बार लाइक सी हम इंटरव्यूज क्रैक करना इतनी बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है खुद में. Anupam, Vishu, Pankaj, you guys are late. Ruchi, you're joining after 17 minutes, dear. Please respond. Ma'am, as a fresh. Good morning, ma'am. 1 second, Anurag. Good morning, Richi.
Why you are joining so late? मैम एक्चुअली भूल गई थी. Okay then. Okay. Yeah. So इस सेशन का आज ओवरव्यू है. अनुराग, yes, you were having some doubt. मैम एज अ फ्रेशर एचआर के पास सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Can we do this in in the session dear, because it's mentioned there, a bar graph. ओके. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So build confidence in communication with HR. Like how we treat the HR. Sometimes होता है ना कंपनीज में, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स की, अगर वो बोल रहे हैं वी विल प्रोवाइड यू 15, हम क्लोज कर देते हैं. हमारे अंदर वो गट फीलिंग और काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो हमें इतने बोल्डनेस से कह रही है वी विल गिव यू 15 ओनली, तो हम उसे काउंटर कैसे करें. ये कई बार होता है, नॉट विद द HR ओनली, हम मार्केट में भी जाते हैं एंड द सेलर, द ओनर, द शॉप ओनर कुछ कहता है कोई प्राइस के दिस, तो हम क्लोज कर देते हैं. वी आर नॉट हैविंग दैट नेगोशिएशन स्किल्स कि हम वहां पे नेगोशिएट करें अपने टर्म्स एंड स्किल्स को, अपने स्किल्स को लेकर, राइट. तो ये कॉन्फिडेंस HR के साथ तो आना चाहिए, वरना आपको वो अगर 30 देगी आप 30 पे क्लोज कर लोगे, क्या पता वो आपको 40 पे भी क्लोज आप कर सकते थे नेगोशिएट करके, बट आप कर लेते हो. ये पार्ट, नेगोशिएशन पार्ट आपका इंक्रीमेंट के टाइम में भी आता है. व्हेन यू कंप्लीट योर 1 ईयर इन दैट कंपनी, तब आप कितना अपना हाइक बढ़वा सकते हो, ठीक है. तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है. आई लॉक दिस सेशन. Abhishek, why are you joining so late, dear? ओके. ओके, मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप सब देख सकते हो. आज का सेशन का ओवरव्यू ये 3 पॉइंट्स हैं कि कैंडिडेट्स कैसे नेगोशिएट, उनको नेगोशिएशन स्किल्स टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करनी चाहिए, काउंटर ऑफर्स कैसे होते हैं और कैसे करने चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड कर सकते हो इन कम्युनिकेशन विद द HR. ओके, सो स्टेप 1, ये स्टेप 1 है सैलरी नेगोशिएशन का ही, तो इसमें कोई अलग अलग टॉपिक्स नहीं है. द टॉपिक इज द कॉमन सैलरी नेगोशिएशन. उनके उसके अंदर हमारे पास 3 सब टॉपिक्स है जिस पे हम वर्क करेंगे. एंड there's the steps, the procedure, the process. Okay, step 1 is stay professional and thankful. Professional with the HR and thankful for the offer she is giving, whether she is giving you 10, 15, 20, 25, doesn't matter. Okay, be thankful for that, but don't accept it to suddenly or instantly. कैसे अप्रोच कर सकते हो? Thank them clearly and sincerely for their response or revised offer. Okay, whatever the offer they have given you, ठीक है. Acknowledge करो that you recognize the effort involved in reviewing and adjusting the offer. Maintain a collaborative tone instead of appearing confrontational or overly demanding. इसका मतलब है, see how to approach it in the sense कि आप कैसे अप्रोच करो HR को कि हाँ मेरा ये चीज कर दो. कैसे? पहले तो अगर उसने 30 दिया है आपको, लेट सपोज यू आर गोइंग एज अ जावा डेवलपर एंड एज अ फ्रेशर शी इज ओनली प्रोवाइडिंग यू 30. नहीं, 30 इज एक्चुअली अ गुड अमाउंट, लेट्स से 20. ओके, 20K she is providing you, but you are having more skills. You just don't know about the complete Java. You know about the React part also. You know something about the Python, some AI, right? And you don't want that, that salary package. Okay, so आप कैसे negotiate कर सकते हो? अपने skill set दिखाकर, but आपकी जो tone होनी चाहिए वो demanding नहीं होनी चाहिए. Like अपनी skills बताओ, ठीक है, but आपको requesting और डिमांडिंग, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना होगा. ना ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लीज 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 डू दैट, ओके, और डू दैट. इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा. आपको अपने सारे स्किल सेट दिखाने होंगे, ठीक है. आपको रिकॉग्नाइज उसे करवाना होगा कि सी आई एम द अ गुड एसेट फॉर योर कंपनी, ठीक है. और रिस्पेक्टफुल तरीके से करना होगा और करना ही होगा अगर आप 30 चाहते हो, वरना यू कैन क्लोज दैट डील ऑन 20 ऑल्सो. ओके, इस अप्रोच का बेनिफिट क्या होगा? ओके, लेट मी लॉक दिस सेशन.
how to log this. Okay. Okay then. Yeah, अभी जो न्यू आए हैं मैं एक बार वापस ओवरव्यू दे देती हूँ. This is the last time because you have joined so late, dear. Yes, इस सेशन को ओवरव्यू वापस से दे देती हूँ and this is the last time. Today's topic is about the salary negotiation strategies for the freshers and the mid-level. सेशन में सब टॉपिक्स आपके आएंगे, कैसे आप नेगोशिएशन टेक्निक सीख सकते हो, काउंटर ऑफर्स डायनामिक्स एंड द कॉन्फिडेंस, लाइक हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन विद द एचआर. Okay, there was a first step that stay professional and thankful. Okay, whatever amount she is giving you, be thankful for that, but don't accept it, approach it for a new revised offer. Okay, एंड रिकॉग्नाइज करो उसे के एफर्ट्स को कि हाँ वो तुम्हारे लिए इतना एडजस्टमेंट कर रही है. ठीक है, कोलैबोरेटिव टोन रखो, डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग इन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखो. इसका बेनिफिट क्या होगा? HR representative keeps the door open for continued dialogue, set a tones of mutual respect that can lead a. Okay, I think ये इसकी नीड थी नहीं. इसका बेनिफिट मैं खुद ही बता देती हूँ. इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट इस अप्रोच का कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी. सिंपल. ठीक है, इसमें किसी को डाउट इस अप्रोच में, फर्स्ट स्टेप में? No, ma'am. एनीबडी? No, ma'am. एनीबडी? There are 34 candidates ma'am. and I'm just hearing 2 no's. The rest 33? No, no. Verma, I'm still again requesting you to don't please unmute yourself, okay? Because आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज है और मे बी आप अगर बड्स यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज कर रहे हो तो प्लीज रिमूव दैट, बिकॉज ये हर सेशन में होता है आपकी साइड से. यस, एनीबडी? फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट था? विकास? No, ma'am. कोई doubt नहीं. ओके. मनोहर? मनोहर, Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट? No, ma'am. ठीक है, सेकंड स्टेप पे चलते हैं. सेकंड स्टेप पे जाने से पहले हम यहाँ तो हमने अप्रोच किया बस उसे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मतलब उसे अप्रोच करना कि हम कैसे अप्रोच करें कि हाँ मैं इस पे ओके नहीं हूं, मैं कुछ और चाहता हूं. ये पहला स्टेप है. सेकंड स्टेप आता है आपका इवेल्युएट करो एंटायर पैकेज को. ठीक है, पहले तो आप 20K पे मानो मत, क्योंकि आपका वो अंदर से एक वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब हु इज प्रोवाइडिंग यू 20K इवन आफ्टर हैविंग सो मच स्किल्स. ठीक है, या 15 हो या 10 हो. ठीक है, आप चाहते हो कि वो 30 या 35K तक जाए. ठीक है, अप्रोच करने के बाद मतलब उसे एक बार अप्रोच करो दैट आई एम नॉट ओके फॉर दैट, ओके, आई नीड समथिंग एल्स. उसके बाद आप पूरा पैकेज इवेलुएट करो. पूरा पैकेज कौन सा पैकेज? जो वो प्रीवियसली दे रही थी. ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि अगर अप्रोच किया आपने मतलब वो ओके है कहीं ना कहीं, या तो वो सीधा नो बोल देगी या फिर वो थोड़ा टाइम लेकर सोचेगी या फिर आपसे पूछेगी व्हाट यू नीड. उसके बाद आप पूरा पैकेज जो वो दे रही है उसमें उसको इवेलुएट करो कि बेस सैलरी क्या है आपकी, इसमें कोई बोनस या इंसेंटिव्स है कि नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स है, रिमोट वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हाइब्रिड का ऑप्शन है या नहीं है, कोई पर्क्स है, लर्निंग पर्क्स. ठीक है, या फिर कैरियर ग्रोथ है या नहीं. ठीक है, अगर आपको लगता है ये सब आपको मिलाकर 20K है तो डोंट सेटल फॉर दैट. ठीक है, इन सब के अलग अलग प्राइसेस होने चाहिए. इफ शी इज प्रोवाइडिंग रिमोट, ठीक है, ओके बोल दो. ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, इंक्लूड करवाओ. ठीक है, इंसेंटिव्स नहीं है, इंक्लूड करवाओ. क्योंकि देखो आप अगर बेस सैलरी वो आपको 20 दे रही है, ठीक है, और अगर वो ये बोल रहे कि हाँ देयर आर इंसेंटिव्स, देयर आर सम पर्क्स, देयर आर सम अवेलेबिलिटी फॉर द रिमोट वर्क आल्सो, तो फिर आप हाना हाना करके 25K तक इट्स गुड. ओके,
बट 20K के अंदर ही सब कुछ आपको करना है। 6 days वर्किंग है, 9 shift जॉब है, हेल्थ बेनिफिट्स भी कुछ नहीं है, इंसेंटिव्स कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप 30K डिमांड करो। ठीक है, तो पैकेज को अच्छी तरह इवेलुएट करो पहले तो, और ये देख के चलो कि कंपनी व्हाट इज इन डीलिंग विद, सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, ग्रोथ है आपके डोमेन से रिलेटेड या नहीं है। ठीक है, कोई मेंटर है वहां पे, या फिर कोई इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप, जिससे आप अपनी नॉलेज को या फिर अपने ग्रोथ को एक किक स्टार्ट दे सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये आपको हर ऑफर लेटर में देखने होते हैं। ठीक है, हर ऑफर लेटर में कि आपकी बेस सैलरी कितनी है, इंसेंटिव्स कितने हैं, बोनसेस कितने हैं, कई कितनी बार बोनसेस हो सकते हैं, और ये सब रिटर्न में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो वर्बली आपसे बोल रही है कि हाँ इतना मैं आपको कर दूंगी, उतना कर दूंगी। ये सब रिटर्न में एचआर से लो। रिमोट वर्क भी आप रिटर्न में लो कि हाँ वी कैन प्रोवाइड यू रिमोट वर्क ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, ऐसा ऐसा। और लर्निंग पर्क्स, मतलब जो आप सीख रहे हो उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशन करवाएगी कि नहीं करवाएगी, कोई उसका कोई एक्स्ट्रा कोई पर्क्स है या नहीं है, कि अगर आपने ओवर टाइम किया या फिर कुछ और किया तो कुछ एक्स्ट्रा देगी या नहीं। तो ये सब देख के चलो। अगर इन सब में से आपको जो लगता है कि नहीं इंसेंटिव्स नहीं है, तो ठीक है मैं 25K पे मान जाऊंगा। रिमोट वर्क भी नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स कुछ नहीं है, तो 30K या 35K तक फिर आप जाओ। इसमें किसी को डाउट स्टेप 2 में? No, ma'am. एनीवन? Hello? No, ma'am. यस, मैम यस मनोहर, मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? सॉरी। रिकॉर्डिंग सेशन विल बी अवेलेबल? Yes, it will be available, but not for you. You are taking the live session now. यस मैम। Then, मैम मैम जैसे कि हमारा तो नेट इशू है, कभी आवाज आ रही है जा रही है, तो इसलिए बाद में दोबारा देख लेते ठीक से। ठीक है, but अभी कोई डाउट है तो वो पूछो। नो मैम डाउट नहीं है। Okay. Ma'am, Anybody? I have one doubt. Hello? Yes, Ankit. मैम Ma'am, One by one, one by one. Yes, Ankit. मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि सैलरी ब्रेकअप को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको देखना है। Right, right. बट मैम मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ अभी, बट हाँ हाँ, मैम दिक्कत सैलरी ब्रेकअप में तब आती है जब हम कोई मेट्रो सिटीज में हमारी पोस्टिंग हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, या फिर ऐसी सिटीज में जहाँ पे मैम हाउस रेंट काफी ज्यादा होता है। तो right. उस केस में मैम हम उससे कैसे टैकल डाउन करें, क्योंकि अ, अगर कोई फैमिली वाला मेंबर है और अगर उसको दिल्ली या मुंबई में रहना है तो मैम 15-20 thousand तो Obviously, मतलब you will focus on the remote work part. रिमोट वर्क में अगर आपको 30 दे रही है एज अ फ्रेशर, बिकॉज ये एक्सपीरियंस तो फिर मैं कोई भी एक जनरल अमाउंट नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कितना, मुझे नहीं पता आपकी प्रेजेंट सिटी से क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, राइट? सबके वेरी करेंगे एक दूसरे से, है ना? बट मैं एज अ फ्रेशर ही लेके चल सकते हैं, बिकॉज फ्रेशर का जो सैलरी ब्रैकेट है 3 to 6 ही है। ठीक है, इससे मैम नीचे एक्चुअली ऊपर बहुत रेयर इन चांस ही जाता है। बट हाँ, अगर आप जैसे मेट्रो सिटी में बात कर रहे हो अंकित, तो आप रिमोट वर्क पे फिर फोकस करो। ठीक है, उसको मैम आई हैव बताओ। एक्सपीरियंस, यस। I have experience and I'm doing coaching of SAP MM ओके। module. So, हाँ हाँ। ma'am, I have experience of 3 years. So, according to that, how can I tackle down this type of situations? हाउ कैन यू टैकल डाउन, मैंने वही तो बोला डियर, रिमोट वर्क पे फोकस करो ना। अगर आपको लगता है बैंगलोर, मुंबई, पुणे एंड साउथ साइड बहुत ज्यादा रेंट है, लाइक 30 और 35K तो 1 BHK का है, राइट? Yes, ma'am. और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रिसाइड करते हो, यहाँ पे आप लोकेट करते हो, तो फिर यू मस्ट एक्चुअली यू मस्ट गो फॉर अ रिमोट वर्क पार्ट, नॉट इवन फॉर द हाइब्रिड। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर अपना सैलरी ब्रैकेट आप 50-60 तक लेके जाओ। एज अ फ्रेशर ही बोल रही हूँ। अगर आप सी, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस से बात नहीं कर पाऊंगी आपसे, मैं इंडिविजुअली बात कर पाऊंगी, ठीक है? जी बट जी मैं जी अगर प्रेशर ओके लेके चलूँ तो 50-60 तक लेके जाओ, उसे काउंट करवाओ कि सी आई हैव टू पे द रेंट एज वेल, either provide me ओके apartment, okay, ओके provide me a remote work opportunity, or that money to you know
to give to settle down with my rent part. ओके ठीक मैम। है, क्योंकि ये सब वो जानती होगी। ठीक है, बैंगलोर, वो किसी कैंडिडेट को दिल्ली से बुलाकर बैंगलोर आ रहा है, या फिर साउथ साइड, राइट, एंड शी इज नॉट इवन प्रोवाइडिंग यू द रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी और दैट मच सैलरी ब्रैकेट। कोई 30K में तो बैंगलोर आई डोंट थिंक सो कोई जाएगा, और ना जाना चाहिए। जस्ट इग्नोर दैट पैकेज इफ शी इज प्रोवाइडिंग यू दैट मच ओनली। मिनिमम 50, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, क्योंकि बैंगलोर में आपका 20, 25, 30 तो आपका रेंट ही है। एक्चुअली मैम ठीक है, प्रेजेंटली अभी 6 लाख पैकेज है मेरा, और ओके, मैम मैं अभी रिमोट लोकेशन पे हूँ। और अगर मुझे दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली लोकेशन मिलती है, हाँ क्योंकि हाँ। मैम व्हाट्स योर करेंट रिक्वायरमेंट के लोकेशन टाइम। डियर? यस मैम। व्हाट्स योर करेंट लोकेशन? उज्जैन। उज्जैन, ओके। तो मैम ये मतलब इतना कॉस्टली सिटी नहीं है, लेकिन अगर मैम मैं यहाँ से सपोज करिए दिल्ली मूव करता हूँ, तो फिर मैम मैं कैसे अप्रोच करूँ मैम इस कंडीशन को, क्योंकि करंटली आई एम गेटिंग 6 लाख पैकेज। अंकित, यू तो कैन यू जस्ट कनेक्ट मी आफ्टर द सेशन डियर, तो मैं आपका इंडिविजुअल एक बार ले लूं, यस मैम, यस बात कर, ओके, राइट? थैंक ओके, यू मैम। वेलकम। ओके, मैम सो स्टेप 2 is yes, मैम हेलो मैम, व्हाट मैं इज रिमोट वर्क? मैं रिमोट yes वर्क, dear। मैम ये मेरा मैम व्हाट इज रिमोट वर्क? यस मैम, रिमोट जो आप घर से काम करते हो डियर, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्क फ्रॉम होम। तो ये ऑफर लेटर में ये सारे कंडीशंस जो आपने अभी दिखाया है, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव वगैरह, वो सब मिलता है, या देखना या बोलना पड़ता है उसको? मिलता है, और अगर नहीं लिखा है तो लिखवाना पड़ता है HR से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। okay, moving ahead, moving forward. Okay, we have completed step 1 and step 2. Okay, now step 3. Step 3 is highlight your worth. Okay, reiterate your value, जो भी वैल्यू आपकी है। Okay, so there is a bar graph. ये बार ग्राफ आपके सिर्फ 3 स्किल्स के हैं, विच इज जावा, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज, जो कि आपके जावा फुल स्टैक के पार्ट ही है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस एंथुजियाज्म फॉर द रोल, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, reinforce your technical strengths and experience and be specific. Okay, first आपको एक बार आइडिया हो, ठीक है, कि मार्केट, व्हाट इज द मार्केट इज डिमांडिंग और प्रोवाइडिंग टू अ 1 year of experience in Java, 2 years experience in Java, or 3 years, or moreover, right? You should have that knowledge, तभी आप HR से काउंटर कर सकते हो। इफ शी इज प्रोवाइडिंग यू 30 और मार्केट में वही 1 year एक्सपीरियंस जावा में 40 और 50 और 60 भी इवन मिल रहे हैं, तो 60 तो चलो नहीं वो एकदम से देगी कि जस्ट बिकॉज आपने कह दिया, तो बट एटलीस्ट आप 45-50 तक तो क्लोज करवा पाओगे, है ना? आप कैसे करवा पाओगे? आप एंथुजियाज्म दिखाओगे उस रोल में कि हाँ, मैं इस रोल के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, बहुत ज्यादा मेरे अंदर कैलिबर है। ठीक है, आप अपने सारे टेक्निकल स्ट्रेंथ्स और एक्सपीरियंसेस काउंट करवाओगे। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, मे बी यू हैव डन सम प्रोजेक्ट्स, है ना? आपने प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे, वो प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो कि हाँ, आप अगर एज अ फ्रेशर मुझे ले रहे हो तो आई एम मोर ओवर अ फ्रेशर, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस की प्रोडक्टिविटी दूंगा। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो आप बताओगे HR को कि हाँ, इन अ रूम ऑफ 100 फ्रेशर्स कैंडिडेट्स, आई एम द वन हु इज हैविंग knowledge, as per the experienced candidate. Be specific. बिल्कुल एक अलग ही आपको दिखना होगा HR की नजर में कि हाँ यार, दिस गाय इज हैविंग समथिंग, है ना? कि यार मैं इसका 30 या 40 या 50 तक तो मैं कर सकती हूँ, कि ये मुझे प्रोडक्टिविटी देगा उतनी जो मार्केट में कैंडिडेट 60 पे ले रहे हैं, ये मुझे 40 या 50 पे दे देगा। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बार बार आपको कोई ना सिखाएगा नहीं कि हाँ आप ऐसा बोलो, आप वैसा बोलो। ये अपने स्ट्रेंथ्स को और एक्सपीरियंसेस को लेके आपको खुद ही डिलीवर करना होगा HR को, हर HR को अलग अलग, क्योंकि हर कंपनी के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, हर कंपनीज के
पे आउट्स अलग अलग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको फिर करना होगा, बट या गो विद द मार्केट एवरेज सैलरी व्हाट द मार्केट इज प्रोवाइडिंग इन योर लेवल। ओके, स्टेप 3 में किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओनली 2 Ma'am, I नोस? have a doubt. यस रुचिता। Ma'am, if I show that I am currently working on the same role in my present organization, although I'm not, but I mean, does it affect on my salary or Obviously, yes, it will be. okay? See, maybe you are having, let me give an example. All of you have this example. आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है मे बी इन सेल्स फील्ड, लेट सपोज, है ना, सेल्स बहुत कॉमन है, 70 या 60% तो मार्केट में सेल्स ही है, मे बी 80। ओके, सेल्स में आपने काम किया है फॉर 3 years, ओके, एंड यू आर हैविंग 7 LPA पैकेज right now in your hand, ठीक है, and now you are moving forward with another software, another IT domain, for example data analyst, SAP, something, ठीक है, कुछ भी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लास्ट कंपनी में, बिकॉज आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सैलरी के साथ नहीं कर सकते, टेन्योर के साथ नहीं कर सकते, डेजिग्नेशन के साथ नहीं कर सकते, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कर सकते हो। तो अगर आप सेल्स में रहते रहते अगर आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखा दो कि मैंने जो सेल्स का मैं जो डेटा था वो SAP सॉफ्टवेयर पे अपडेट करता था या फिर उससे मैनेज करता था, बीइंग अ डेटा एनालिस्ट एक्सेल दिखा दो कि मैं एक्सेल पे करता था, मैं पावर BI डैशबोर्ड्स यूज करता था, है ना, मैंने ये प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या मैंने प्रेजेंटेशंस भी दी हैं, ठीक है। अगर आप 1.5 साल तक का भी दे दोगे, ठीक है, तो वो 1.5 साल आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, ठीक है, इन SAP और इन डेटा एनालिस्ट और इन जावा, नहीं जावा तो चलो बिल्कुल कोडिंग अलग हो जाएगा, सेल्स में नहीं आ पाएगा, वो तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएगा, बट मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, तो वो आपका काउंट हो जाएगा। जहां पे वो कंपनी आपको 30 पे क्लोज कर रही थी, वहीं पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस दिखा के वो आपको 50 और 55 भी दे सकती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट आपको वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्टिफाई करना भी आना चाहिए इन द इंटरव्यू। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे आता है और मैंने अपना काम दिखा दिया, तो आपको काम भी फिर दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में कि अच्छा दिखाओ फिर तुमने कैसे किया है, क्या आता है तुम्हें, राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा। एनी डाउट्स Okay. गाइस, एनी डाउट्स? नो मैम। No. No, ma'am. No, ma'am. Okay, can I have everyone's response, please? I have ruined my Sunday for you guys. Please, this Hello, ma'am. session must be interactive. हेलो मैम। Yes, गुड Salish. आफ्टरनून मैम। मुझे थोड़ी सी डाउट थी, जैसे कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊं मैं, अगर उनका बजट 30K है और मैं चाहता हूं 40K प्लस मेरी सैलरी होनी चाहिए, तो वहां पे मैं कैसे नेगोशिएट करूं? मतलब कोई एग्जांपल देकर आप बता सकती हो मतलब इसके लिए? एग्जाम्पल्स मैंने बताया ना, प्रोजेक्ट्स दिखाओ, अपना काम दिखाओ, स्किल्स इतने दिखाओ कि हाँ अगर आप किसी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस पे हायर करोगे 40 या 50 पे, तो वही काम मैं आपको 35 या 40 में दे सकता हूँ, सेम काम। ये आपको दिखाना पड़ेगा पूरा काम, क्योंकि फ्रेशर के लिए मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। डाउन क्या, बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल अब तो वैनिश हो रहा है ना। एवरी कंपनी नीड्स अ फ्रेशर, needs an experienced guy who can provide the productivity from the next day of the joining. ये सब मांग रहे हैं, ठीक है। फ्रेशर्स तो बहुत एक काइंड ऑफ मिथ हो गया कि हाँ दे आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स, दे आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। इवन मेरे पास भी जो वैकेंसीज आती है, मैं आप लोगों की CV शेयर करती हूँ, उसमें से वो देखते हैं किसका प्रोजेक्ट ज्यादा बेस्ट है, किसमें ज्यादा स्किल सेट मेंशन है। उनको तो आज की डेट में SAP, डेटा एनालिस्ट, जावा सब कुछ साथ में ही चाहिए किसी कैंडिडेट में, ये है, ठीक है। बट आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप अलग हो सैलेश, जो और सबके CVs में है आपको उससे एक्स्ट्रा आता है, और उस एक्स्ट्रा का आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांग रहे हो, आप बस थोड़ा सा और मांग रहे हो, और वो काम आप सारा उसी सैलरी में डिलीवर कर दोगे उनको। ये आपको दिखाना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। चलो स्टेप 4 पे चले।
मैम उसके लिए हमें कोई मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ ऐसे इम्पार्ट हो सकते हैं सो दैट वी कैन Yeah, शो you can अप. ask with the trainer. They will provide you. ओके Yes. ओके मैम. Okay. Yeah. So, yeah, this is the data you can use to justify your salary. You can also mention the sources. ठीक है, sources which is Glassdoor, Ambition Box, Insights, Naukri, LinkedIn, Payscale. Okay, so these are some reports जो ये प्रोवाइड करते हैं. अगर प्रोवाइड इन द सेंस सी आप नौकरी पे जाते हो, ठीक है, और नौकरी पे मोस्टली जो ये एवरेज सैलरी होती है स्प्रिंग बूट प्लस माइक्रो सर्विसेज डेवलपर की 8 से 12 लाख है. ठीक है, ये सोर्स क्या है? ग्लासडोर और नौकरी इनसाइट्स. ठीक है, वहीं पे अगर कंपनी आपको 4 पे या 5 पे सेटल कर रही है, सो डोंट सेटल फॉर दैट. यू कैन क्लियरली से कि मैम दैट the market is demanding, the market is providing 8 to 12 LPA. Why are you providing me this much? Because I'm providing you Spring Boot and microservices, both, both the technologies. But this is for the experience, guys. Okay. Not for the pressure, but yeah, 2 years of experience. Pressure अगर मैं chart बनाऊं तो ये चीज वही हो जाएगी कि 3 to 6 LPA as a fresher. Okay. जावा डेवलपर में 7 to 10 इजिली जाता है. ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर है तो 9 to 13. तो आपको खुद अपना मार्केट में वैल्यू पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर मैं जावा में हूँ और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे मार्केट कितना दे सकती है, मतलब हाईएस्ट. ठीक है, उस हाईएस्ट से लेके 2-3 LPA नीचे तक उतनी अपनी रेंज रखो. क्योंकि अगर आपने एक बार एंटर कर लिया ना कॉर्पोरेट में उस सैलरी ब्रैकेट में, तो आपके जो हाइक होगा मैक्सिमम 30% ही जाएगा, 50% नहीं जा पाएगा. 30% इज द हाईएस्ट, 30 और 35. उससे ऊपर आप कितना भी डिमांड कर लो नहीं देंगे, मतलब स्विचेस पे. ठीक है, तो आप ट्राई करो कि अगर आप आईटी डोमेन में एंटर कर रहे हो तो जितना ज्यादा आप पैकेज पे क्लोज करवा सकते हो उतना ज्यादा करो. मे बी आपको एक्सपीरियंस थोड़ा शो करना पड़े, वो करो. डेटा एनालिस्ट की बात करें तो 6 to 10 LPA 2 से 4 साल में, मतलब 2 साल पे भी आपको 7-8 मिल सकता है, इतना ही रेंज होता है. बट समटाइम इट गोज अप टू 12 ऑल्सो इफ यू आर हैविंग 4 years of experience. So, ये डेटा आपको खुद ही अपने लिए देखना होगा. आप पावर एप्स में हो, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आप अपना डेटा खुद जाके गूगल पे, ग्लासडोर पे, लिंक्डइन पे जाके खुद देखो कि हाँ मार्केट कितना डिमांड कर रही है एक साल एक्सपीरियंस के फ्रेशर्स, मिनिमम टू एक्सपीरियंस. अगर मैम जिसका मतलब क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होगा या फिर सैफ फीको मतलब फीको तक ही होगा, उसका मतलब क्या? फिर 3 to 6 I told you, dear. 3 to 6 LPA. Yeah. मैम टैप एमएम हैविंग 3 years of experience तो उसके लिए कितना रहेगा? 3 years in what? और एज अ टैप एमएम कंसल्टेंट. Are you having experience in SAP? Yeah, ma'am. Having basic idea about how to create the PO, purchase acquisition. Have you worked for 3 तो मैं years in SAP? हाँ मैम बेसिक आइडिया तो कर ही रहा था मैं. परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर जनरेट करना. No, dear, just answer me in yes or no. Are you having experience in SAP of 3 years? Yes, ma'am. I have experience of 3 years. And you have done the course of SAP MM Yes, ma'am. from here? From Chroma campus. अभी आपका current city से 6 है. Then you can easily expect Yes. the 7 to 8, dear. Okay. If Yes. you are having 3 years of experience, only then. Okay. Okay. क्योंकि अगर नहीं है, आपके CV में नहीं मेंशन है, तो आप फिर 3 to 6 के बिटवीन ही आ जाओगे एज अ फ्रेशर. Okay. मैम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं मेंशन किया हूँ इन सब चीजों को. हाँ, तो उसको वही जैसे कि आपने जस्टिफाई कर बताया. लेना फिर आप 3 years हाँ. का बस. यस मैम. यस मैम. यस मनोहर. मैम जैसे हमें एक्सपीरियंस है 3 years का, बट किसमें? वो अलग फील्ड में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो मैं तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा, फ्रेश क्या लाएंगे हम डेटा एनालिस्ट में? नहीं होगा डियर, मैंने अभी तो बोला अदर डोमेन का क्यों काउंट करेगी कंपनी. ओके मैम. ओके.
ओके, स्टेप 5 पे चले। या सो बी ओपन टू कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो, ठीक है। अगर वो सैलरी आपको लगता है कि यार कंपनी अच्छी है, मैं कर सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन चलेगा, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, फुल्ली कि बिल्कुल हाँ मुझे कोई और जॉब मिलेगी नहीं, यही सिर्फ लास्ट कंपनी है, थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा समहाउ, ठीक है। मे बी इन रिमोट वर्क में, या फिर वर्किंग आवर्स को लेके, या फिर ऑफ्स को लेकर, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपका चलेगा। अगर वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, देन ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में लेके चलने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज आस्क फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू इन 6 मंथ्स, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है कि अगर ठीक है वो आपको अभी सैलरी 30 दे रहे हैं, ठीक है, वो 40 पे नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलो कि ठीक है, जस्ट रिव्यू माय परफॉर्मेंस इन 6 मंथ्स, एंड इफ इट्स गुड, इफ इट्स अप टू द मार्क, देन प्लीज इंक्रीज माय सैलरी, एंड ये सब चीजें आप रिटर्न में ऑफर लेटर में लो, ठीक है। सेकेंड इज नेगोशिएट अ साइनिंग बोनस, एक बोनस भी आप नेगोशिएट, साइनिंग बोनस एक नेगोशिएट करवाओ, ठीक है, कि हाँ मुझे आप इतना बोनस दोगे, ठीक है। ईयरली बोनस हो, मंथली बोनस हो, क्वार्टरली हो, जो भी हो, ये साइन करवाओ, ठीक है, ताकि आपको सैलरी से ना सही बट इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिले, ठीक है, जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया उसको कवर अप कर पाए। द लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर मोर पेड लीव्स और सर्टिफिकेशन सपोर्ट। पेड लीव्स इन द सेंस, जैसे कुछ कंपनीज में लाइक फॉर गूगल एग्जांपल, ओके, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी एमएनसी हो गई, बट फॉर एग्जांपल दे आर प्रोवाइडिंग यू द सीएल्स, ईएल, ओके, आई गेस ईएल इज इमरजेंसी लीव्स, ओके, सैटरडे संडे ऑफ, ओके, meal facility, cab facility, right? They are providing you so much facilities, okay, and even a good salary package, okay. अगर वो salary package 20 और 30 भी देते हैं ना, तब भी I guess 90% of the the freshers or the experienced candidate ready to work there because they are providing you the cab services, जो आपका जो cost cutting है ना, जो आप lunches में आपके कॉस्ट जाएगा वो आपका कवर अप कर लेगी। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो आपके ट्रांसपोर्ट का मेट्रोज या कैब से आपका होता है, वो आपका ओवरकम कर लेगा उस चीज को, तो मे बी आप 20,000 आपके हाथ में सीधा सीधा आएंगे, 20 और 30 जो भी है। सर्टिफिकेशन सपोर्ट मांगो कि हाँ वो आपको सर्टिफिकेशन कुछ कोर्सेज करवाएंगे कंपनी वाले ग्रोथ के लिए, एज पर द ग्रोथ, जैसे आप क्रोमा से कोर्सेज कर रहे हो, यू आर पेइंग फॉर दिस, है ना। बट कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को यहाँ से पढ़वाते हैं, पे आउट कंपनी ही देती है, ठीक है। तो ये सब आप, ये तीनों पॉइंट्स आप डिस्कस करके चल सकते हो इफ दे आर नॉट इंक्रीजिंग योर सैलरी, ठीक है। 5th पॉइंट में किसी को डाउट कुछ? No, ma'am. No, ma'am. एनीबडी? No. एनीबडी? No, ma'am. मैम यस अनुष्का। मैम एक्चुअली अगर 1 ईयर की रिव्यू की पॉलिसी है कंपनी की, हाँ एंड इफ वी आस्क कि 6 मंथ में रिव्यू होना चाहिए, हाँ एंड इफ दे आर नॉट गिविंग इट इन रिटन, तो हाँ। कैन वी ट्रस्ट और कैन वी नॉट ट्रस्ट देम? सी डियर, Because- आपको मैं बस इतना बोलूंगी अनुष्का, ये सब आपके हैंड में है, मेरे बोलने से मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप वो कंपनी छोड़ दो, है ना। यू विल नो दैट सिचुएशन मोर देन मी, कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना सही है, क्या करना गलत, बट इतना है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज आप ना फिर वहां पे काम करना आपके लिए एक एक दिन बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स पे काम करो कि हाँ आई एम प्रोवाइडिंग देम द सर्विसेज, दे आर एंड आई एम गेटिंग पेड फ्रॉम देम, ठीक है। तो चीजें बैलेंस्ड हो, या चलो 50-60 हो जाए, 40-60 हो जाए, तो थोड़ा बैलेंस रहता है, बट ऐसा नहीं कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एट 80% एंड दे आर जस्ट गिविंग यू द 20% अमाउंट, ये मत करो, ठीक है। तो अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, दूसरे ऑप्शन देखो, अगर आपको लगता है मेरे पास और बकेट में और कंपनीज है, वहां पे अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको लगता है यू आर गुड टू गो विद दिस 1 ईयर परफॉर्मेंस रिव्यू, देन ओके, से ओके, इट टोटली अप्स टू यू, ठीक है। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज, फुल्ली कॉम्प्रोमाइज मत करो कहीं पे भी। ये समन। Hi, Akansha. I wanted Hi, to Aman. know that like when we should get to know that we are losing the game
like how many times we can counter, and what statement of from the HR we can identify that we are going to lose it, because they See, will if already like having number of candidates with them, they will choose the least one. So when should we see, get to know that? see, uh, if she is taking pauses in in your responses and giving your responses and your replies, then she is not having anyone in her bucket. Okay, but if she is responding your mails, your queries, even on calls, even on messages or anywhere, okay, very frequently, okay, and in a rude way somehow, okay, then उसके पास buckets में और लोग हैं, ठीक है. वो एक काइंड ऑफ साइन होता है, वो एक काइंड ऑफ एक आपको एक हिंट मिल जाती है, ठीक है, कि हाँ वो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है. मुझे जैसे यहाँ पे क्लोजिंग करनी होती है, आई एम मेजरली लुकिंग फॉर अ सेल्स पर्सन है, ओके, मेरी यहाँ पे क्रोमा में सेल्स की हायरिंग होती है या फिर मैक्सिमम ट्रेनर्स की ही होती है, ठीक है. तो हमारा भी एक बजट होता है कि हाँ वी हैव टू क्लोज दैट डील इन 60,000 और 70,000, राइट. हम उसके ऊपर नहीं जा सकते. The instructions given by the directors or the owners. और कंपनी हमें लगता है कि यार वो सॉरी कंपनी कह रहे हैं, अगर हमें लगता है कि यार ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम भी हम भी पॉजेस लेते हैं. अगर वो कह रहा है कि नहीं आई नीड वीक ऑफ ऑन संडे ओनली विच वी कांट प्रोवाइड, ठीक है, तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं. अगर मैं एकदम से उसे मना करूँ कि नहीं हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब मेरे पास कोई और है उससे बेटर है, ठीक है. तो वो कैंडिडेट को वहीं पे समझ जाना चाहिए यार यहाँ पे मिलेगा नहीं, चलो पे आउट तो अच्छा मिल रहा है, संडे वीक ऑफ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना. तो वहीं पे वो यस बोल देता है, ओके देन आई एम गुड विद दिस. तो वही चीज आपको भी ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा जो आप यूज करोगे, ठीक है. आप ऑन द स्पॉट कोई मुझे कॉल नहीं करोगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को कॉल नहीं करोगे, किसी कलीग को कॉल नहीं करोगे, यार मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि ईदर यू से यस और नो, ठीक है. Thank you. ओके, step 5 is completed. Step 6, yeah, ask for time if needed, ठीक है. अगर वो उसने आपको सब कुछ बता दिया कि ओके आई कैन ओनली प्रोवाइड यू दिस 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 दिस, और आपको लग भी रहा है कि वो पॉजेस लेती है और आप में इंटरेस्ट शो कर रही है, देन एटलीस्ट टेक 1 to 2 days टू इवेलुएट. तब आप डिस्कस करो फैमिली से, कलीग से, मेंटोर से, ठीक है. एंड इट्स ओके टू नॉट आंसर इमीडिएटली, ठीक है. एग्जाम्पल आप सीधा बोल सकते हो इवन ऑन मैसेजेस, कॉल्स और इन पर्सन, कैन आई टेक अ डे और 2 days टू रिव्यू एंड गेट बैक टू यू, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, वेरी पोलाइट, ओके. आप ये सिंपल उनसे कह सकते हो, पूरा इवेल्युएशन करो कि हाँ मेरा कितना कॉस्ट बैठेगा, मेरे हाथ में कितना आएगा, सब ओके है, मैं इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ कंपनी को, इतनी सारी स्किल्स है मेरे पास, क्या ये ओके है. पूरा अच्छे से टाइम लो, उसके बाद ईदर इन यस और नो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वहां पे टाइम मुझे मिल सकता है तभी, ठीक है. ठीक है, इसमें किसी को डाउट, No, ma'am. एनीवन? यस No, ma'am. प्रज्ञा, ओके, you are showing thumbs up. No, Anyone? Okay. Be respectful always. Okay, yeah, this is the step 7 actually. Okay. Be respectful always. Okay. Be respectful always. Maintain professionalism. Like avoid sounding demanding. कहीं पे भी HR को ये ना लगे कि आप डिमांड कर रहे हो कि यार मुझे ये दो, ठीक है. आप वहां पे अपनी सर्विसेज दोगे, कंपनी आपको पे आउट देगी, ठीक है. तो चीजें एक प्रोफेशनलिज्म
में ही मेंटेन रहेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे डिमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कहते नहीं कि या मेरी मेरी खुद की कंपनी थोड़ी ना है ना, तो वो नहीं है। आप वहाँ पे जाके डिमांड बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इवन यू आर प्रोवाइडिंग देम द सर्विसेज, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके डिमांड करो कि इधर प्रोवाइड में 50 और आई एम आउट। आप नहीं कर सकते। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, और अपने टेक्निक्स और अपने नेगोशिएशन जो टेक्निक्स होते हैं इस तरह यूज करो कि वो मैनिपुलेट होके या कन्विंस होके आपको डन करते हैं, ठीक है। और एचआर जो होती है आपको देखती है एज अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर हमेशा, ठीक है। तो कभी किसी किसी एचआर को ये मत बोलना मे बी यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट कंपनी ओनली फॉर 6 months, फॉर द एक्सपीरियंस ओनली फॉर 3 months, ठीक है। बट उसे कहीं से भी पता ना चले तुम्हारे टोन से, तुम्हारे सीवी से, या तुम्हारे आंसर से कि यार ये तो बस थोड़े टाइम के लिए काम करने आ रहा है। क्योंकि एचआर आपको लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर ही देखती है, जो 3 years 4 years 5 years देगा इस कंपनी को। तो उसे दिखना चाहिए कि हाँ तुम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर हो, तो ही वो डन करती है। एंड कीप टोन कोलैबोरेटिव की ही टोन आपकी होनी चाहिए कि हाँ मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैब कर रहा हूँ और आप मेरे साथ कोलैब करो। चीजें वाइज वर्सा होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? मुश्किल था नहीं वैसे। इसमें कुछ जी डाउट है मैम। किसी को? नो 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 मैम। सिराज, शुभम, रुचिता, सर्वेश, आदर्श, मैम। पुनीत, No, एनीवन? ma'am. नो No, मैम, ma'am. नो मैम। Okay. No. Okay, so this is the last slide. This is the last slide कि इस पूरे सेशन का, इस पूरे टॉपिक था उसका समरी क्या है। जो एक राइट माइंडसेट है वो ये है, नेगोशिएशन एक्सपेक्टेड रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगोशिएशन हमेशा आप अपने एक्सपेक्टेड जो सीटीसी होती है, ठीक है, उसको बस बताओ कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं और क्यों कर रहे हो ये भी बताओ, ठीक है। बट रूड नहीं, ठीक है। बी डेटा ड्रिवन एंड काम। डेटा ड्रिवन इन द सेंस यू मस्ट हैव सम डेटा, ठीक है। डेटा जो मार्केट से कंपैरिजन में हो, जो आपकी सीवी में मेंशन हो कि प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में बार बार स्विच भी करते हो ना, कि आपने यहाँ पे 1 year दे दिया, चलो यार मैं स्विच कर लेता हूँ, अभी मेरा 40 है 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब 50 हो गया तो फिर 6 महीने बाद वापस स्विच कर लेता हूँ कि यार मेरा 60 हो जाएगा। अगर आप ये करते रहोगे ना, सिर्फ सीटीसी पे ध्यान दोगे, तो ग्रोथ तो आपकी नहीं होगी। क्योंकि कंपनीज ऐसे सीवीज में जो आपके 6 months 1 month में जो स्विचेस होते हैं ना, कंपनी उनको नहीं लेती है। क्योंकि कंपनी आपको क्या देखती है, एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, है ना। तो कंपनी आपको फिर वो एक मौका जो मिलने वाला होगा वो नहीं देगी। तो किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो ट्राई करो कि एक अच्छे पैकेज पे क्लोज करवाओ, बोनसेस मिले, इंसेंटिव्स मिले, पर्क्स मिले, हाइक्स मिले, ईयरली या क्वार्टरली, ठीक है। कि वहीं पे आपका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ भी हो ऑब्वियसली। 1 year आप उस कंपनी को दो, 2 years दो, 3 years दो, मे बी लाइफ टाइम ही दे दो, बट वहां पे ग्रोथ और एक इन टर्म्स ऑफ मनी आपका सेटिस्फेक्शन वहां पे बैठना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस रखो बट रूड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो इतना दूंगा, या फिर मैं तो इतने में ही क्लोज, मैं तो इतने पे ही ओके हूँ, इतने पे नहीं हूँ। रिस्पेक्ट दो सामने वाले को, और अपना कॉन्फिडेंस भी मत गिरने दो। इट्स अ विन विन। ओके, so this was salary negotiation strategies. Today's session is about this. Okay, and now I'm open for the doubts. Yes. Yes, guys. Ma'am, how to grab the जो hourly basis पे जो projects मिलते हैं to work on? How to grab that projects? ये वो तो फिर आपको नौकरी से या फिर उनसे प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, वो तो बहुत अलग ही टॉपिक हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं हुआ ना ये तो। मैम Ma'am, नौकरी के कोई अलावा site और कोई साइट पे भी देख सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो आप?
मतलब नौकरी पे वो खोज कर अगर नहीं मिला तो वो कोई और साइट वगैरह भी है क्या, मतलब जॉब के लिए हाँ देखने बहुत के लिए? सारी है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, आपका मॉन्स्टर है। तो अ, मैम तो उस हम्म, पे पहले अपना वो अपना अपलोड करना पड़ेगा सीवी, या फिर सर्च करने अपलोड के करना पड़ेगा डियर, ये जॉब प्लेटफॉर्म्स ही हैं, जॉब प्लेटफॉर्म्स में तो सीवी आप अपलोड करोगे ना, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एनीबडी, कोई डाउट? यस अमन। मैम Hello. यस अमन। Hi. I wanted to know some things about like there are some perks and benefits in my salary when they declare it. In the second slide you mentioned it that to like to differentiate what is the basic salary and what are the other components. So in this like in my recent offer letter I got to know about my like there is more part of my flexible components. Like it is around 60% and 40% is the only basic salary. And in flexible components also, like I am not clear which will be like I will be getting or some I have to claim and then only I will be getting that and they are counted as my fixed CTC. Could you please like let share with me? One of those is Aman, HRA. Aman, so sorry, dear. Can you please come again because I'm not getting it. What you're saying? So yes, my main question is about flexible components. What they have mentioned in the fixed CTC. My Uh-huh. flexible components are as mentioned as a fixed CTC, but like I am doubtful that some of them I will be getting only if I claim those, and if I am not claiming, then they are going to be washed out. So is it so? Can I read it out for you? What are those components? Can you? Okay. Okay. Is it? It is HRA and self car reimbursement, then leave travel Uh-huh. allowance. NPS Uh-huh. is definitely it is going to be deducted, not coming in hand. And then spatial It allowance, it depends is just totally companies to companies, Aman. Totally companies to companies depend करता है ये कि आपकी कंपनी किस चीज में ओके है, किस चीज में नहीं. But yeah, you okay. should go with this components. You should ask them for this. Okay. No, like this LTA, leave travel allowance, it is about up to 1 lakh. So will it Okay. be directly coming as in hand or like I have to claim it then only I will be getting You have to claim it, dear. ये रिबर्स होता है ना then आपका. only. Okay. And जब आप अपने बिल्स और ये सब पे करते हो ना, उसके बाद वो आपके उसमें आ जाता है. then only. And same with the self car reimbursement all these things. Right. Yes. किसी और कोई डाउट? Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. How Ma'am? many years should if interview people ask like how many years you are willing to work in one company,